जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सोनिया आस्ट्रेलिया तो बोल रही हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप नाल स्टार्ट करना चाहवांगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ही अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। गुरु जी जो भी बुलाओगे तुसी ही बुलवाओगे। अगर मेरे तो कुछ बोलने लगे कुछ गलत बोलिया जाए तो प्यारी साध संगत जी और गुरु जी माफ़ करियो। गुरु जी तुहाडा हर एक चीज़ देन दा अनंत अनंत शुकराना। सांस देन दा अनंत अनंत शुकराना। दिन रात देन दा अनंत अनंत शुकराना। रोटी देन दा शुकराना। सिर उत्ते छत देन दा शुकराना। परिवार देन दा शुकराना गुरु जी। हर एक चीज़ देन दा जो ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਔਰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੀਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ ICU 'ਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। 2024 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਦਸੰਬਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 2024 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਸੰਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਖ਼ਰਾਬ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ 2025 ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਲਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਗੇ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ 3 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੰਮਾ ਦੀ ਏਜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਘਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਹੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਚਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟੋਰਚਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਚਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੜਫੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 7 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 24 ਨੂੰ ਹੀ 11/11/2017 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਕਰਿਓ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੁਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਯੂਟਿਊਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੰਮੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਔਰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਉਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੱਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਟਲ ਫੇਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਵਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਰੀਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਢਿੱਡੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਰੋਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਠੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ, ਮੰਮਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੰਮਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਵਾਂ, ਪਰ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी, देखना। और उस सत्संग में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग कितना हाइपर हो जाते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, और होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। हुआ क्या कि मेरी मम्मा आए थे, तो उनको वापस घर जाना था अपने। तो हम लोग निकल गए थे जहाँ पर मैं रहती हूँ। सॉरी संगत जी, मैं वो बताऊंगी नहीं। तो हम लोग मेरे यहाँ घर से निकल गए, और हमें उनका, देखो ऐसा क्या वो बना कि उनको जाना था बट वो जा नहीं पाए जब उनको जाना था। फिर हम उनको छोड़ने दिल्ली गए। मतलब कुछ ना ट्रेन हो रहा था, ना फ्लाइट हो रहा था, ना फिर बस हुआ एंड में। हमने सोचा ठीक है, और गुरुजी के मंदिर में दर्शन भी कर लेंगे, बट हुआ ऐसे कि इतना ट्रैफिक था, गाड़ी से गए थे हम लोग, रास्ता भूल गए। इतनी गुरुजी की गाड़ियों के हमें मतलब वो मिल रहे थे कि जय गुरुजी, जो गाड़ी के पीछे हम चल रहे थे, चल पड़ रहे थे, बट फिर भी हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि फर्स्ट थी।
इतना वो तो हम ना जो गुरुजी के जहाँ पर मंदिर में जाते हैं वहीं से जस्ट मत्था टेका और वापस आ गए। उसके बाद हमें पहुंचना था आईएसबीटी दिल्ली में। इतनी ट्रैफिक, हम लोग पहुंचने वाले थे, बस वाले भैया का कॉल आए जा रहा था, आप आ जाओ आ जाओ, हमने बोला पहुंच रहे हैं। बट फिर हमारा रास्ता फिर से गलत हो गया। जो ड्राइवर भैया थे मेरे, उनको समझ ही नहीं आया और मैं उनको डांटे जाऊं, हम लोग लड़े जा रहे थे। मतलब गुरुजी प्लीज बस मिस मत करवाना, क्योंकि घर पे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी को आए भी मेरे पास बहुत टाइम हो गया और अब तो उनको जाना है और उनको भी फिर बुरा लगेगा कि क्या करें। बट उनको ये भी लग रहा था कि हम लोग कितना कर रहे, इतनी दूर से हम उनको छोड़ने भी आए और ऐसे हुआ। और फिर क्या हुआ कि वो बस हो गई कैंसल। आप सुनते ही रहना, बस हो गई कैंसल। मैंने बोला बस, खुशी मिल गई, गुस्से से सबको मैंने थैंक यू सो मच गुरुजी, बस कैंसिल होगी, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करूं मैं। फिर हमारे जो फ्रेंड है उनको हमने बोला, कॉल किया, वो बोलते टेंशन मत लो, दूसरी आ जाएगी, क्योंकि जो बस की ऑनर है वो हमारे रिलेशंस में आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, फिर हमने दूसरी बस बुक कराई। उसके बाद हम फिर फंस गए। मैंने बोला अगर अब बस मिस हुई ना मम्मी, तो हम लोग वापस घर जा रहे हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मम्मी भी मंत्र जाप करे जाए। मुझे गुस्सा आ रहा था, बहुत गंदा वाला गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो थक भी गए थे, सुबह से निकले थे, दर्शन भी नहीं हुए। तो मैंने ड्राइवर भैया को बोला आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से क्या हुआ, अगर आप जल्दी निकल जाते तो ऐसा नहीं होता। ठीक आधा घंटा रह गया पहुंचने में। मैंने बोला मुझे नहीं पता पहुंच पाएंगे हम, मैं श्योर हूँ हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर हुआ कि हम चलते गए, फिर हम पहुंच गए, आईएसबीटी पहुंच गए, 15 मिनट थे अभी। वहां पहुंच के उसने बोला कि आपको यहाँ 28C में खड़े होना है। मैंने बोला ठीक है, हम 28C में काउंटर में खड़े हो गए, हमें बस ही नहीं दिख रही है। वो बोलता है नहीं बैक साइड आओ, वो दूसरा काउंटर होता है, वहां खड़े हो गए। फिर हम वहां चले गए। मैंने बोला भैया पागल मत बनाओ, और आप क्या पागल समझ के रखो। मैंने उसको बहुत डांटा, बहुत गंदे तरीके से बोला पागल मत बनाओ, आप हो कहाँ पर क्लियरली ये बताओ, बहुत हो रहा है अब। बोलता मैंने बोला मैं वहीं खड़ी हूँ, वहां कोई बस नहीं खड़ी है। फिर उसने बोला कि नहीं आप वहां पर आओ। फिर कोई हमारे पास आया, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आया और मेरे मुंह से उसको अब्यूजिंग वर्ड निकल गए। मैंने उसको बोला ठीक है, मतलब दिमाग खराब मत करना, मम्मी जाना नहीं, वापस चलो। फिर कोई अंकल आए वहां पर, बोलते क्या हुआ। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बस का है, हो गया टाइम भी हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। वो बोलते नहीं उस जगह की बसेस वहां खड़ी होती है, और हम वहां गए। और जब मैंने नंबर देखा है नाम, टोटली शॉक्ड। बस का नंबर था 0007, और 7 तो वैसे ही मेरा लकी नंबर है। मेरा मम्मी, इतना कुछ करने के बाद फर्स्ट बस मिस होगी, सेकंड बस का मुझे होप नहीं था, और अब फाइनली ये हुआ। और हमने नोटिस ही नहीं करा था कि वो 7 नंबर है। मम्मी बोलते ये तो तूने सही बोला। और पूरे रास्ते में एक तो फॉग इतना ज्यादा था। मतलब मम्मी प्लीज ध्यान से जाना और फोन करते रहना। तो मैंने बोला बट मुझे टेंशन नहीं है अब, क्योंकि ये सब गुरुजी ने करवाया है। जो भी गुरुजी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और ये बस अच्छे से आपको पहुंचाएगी वहां पर। मम्मी इतने अच्छे से गई कि घर भी पहुंच के सब अच्छे से हो गया। मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग कितना हाइपर हो जाते, कुछ करते हैं, बट गुरुजी को जो करना है वो गुरुजी ही करेंगे। हमारे गुस्सा करने से, किसी के हमारे साथ बुरा करने से कुछ नहीं होगा। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, होगा वही जो गुरुजी चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ओम थैंक यू नमः गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने फिर से गुरु जी का एक और शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और अब सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के अनडाउटफुली शुक्राने बहुत हैं, बहुत सी बातों के लिए करते हैं, लेकिन हमारे पास मुझे लगता है जैसे वर्ड्स ही नहीं होते हैं। कुछ तो हम माइंड में नहीं रहते हैं, क्योंकि पल पल के शुक्राने तो कोई भी नहीं याद रख सकता। गुरु जी आपको इंटरनली ब्लेस करते हैं, इंटरनली भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पर पता नहीं कुछ देर से ना मेरे ना अंदर नेगेटिविटी शायद हावी हुई है, क्या है पता नहीं, अंदर से मुझे बहुत
नेगेटिविटी ही फील हो रही थी। गुरुजी ने मुझे 7 थर्सडे को शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने के लिए और सत्संग करने के लिए कहा है, और ये मैं गुरुजी के सामने सत्संग करने के बाद ही शुक्राना सत्संग अपना अगला शेयर करी हूँ संगत जी आपके साथ। पता नहीं गुरुजी मेरी परीक्षा ले रही है शायद गुरुजी का, और गुरुजी के कुछ संदेशों से मुझे लगा भी है कि ये मैं तेरी परीक्षा ले रहा वहाँ तो तू टेंशन ना लिया कर। गुरुजी जब फीलिंग आती है मन में गुरुजी की अब तो कुछ नहीं हो रहा, ये है वो आती है संगत जी, मांगते तो हम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बीइंग एन ह्यूमन बीइंग हम लोग गुरु से एक्सपेक्टेशन अनडाउटफुली कर ही लेते हैं। ये मैंने भी फ़ील किया और मुझे पता आप सब भी फ़ील करते ही होंगे, क्योंकि हमें आस होती है कि हमारे पर एक डिवाइन पावर है जो हमें प्रोटेक्शन दे रही है, और जब हमें लगता है कि हम फंसे हैं तो हम उनको याद करते हैं और हमें उनसे उम्मीद हो जाती है कि गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और वो करते भी हैं अनडाउटफुली, पर वो अपने तरीके से ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज ये मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी जो मैंने इस कुछ दिनों से महसूस कर रही थी, और मुझे लग रहा था पता नहीं गुरुजी अपनी वो ब्लेसिंग्स क्यों नहीं दे रहे हैं, जैसे वो बड़ी बार बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, पता नहीं मुझे लग रहा था, लेकिन इसमें मैं ही गलत मुझे लगा मैं हूँ कि कुछ चीज़ों में गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि नहीं थी ये मैनू पता है कि जो चीज़ आई कैन से कि तुझे गलत लग रही है वो मुझे पता है तेरे लिए सही है। ऐसे गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी ऐसे थोड़ी सी अगर सेविंग है तो उसे सही जगह लगाना, और हम कुछ सोच रहे थे पर वो चीज़ हमारी बन नहीं रही थी, और स्लिप्स भी गुरुजी के सामने डाल ली थी और गुरुजी ने वो चीज़ करने से मना भी किया था, और गुरुजी ने वो चीज़ होने ही नहीं दी, और मैंने गुरुजी से ही कहा अरदास कर ली थी गुरुजी तुहानू जो सही लगता है तुसीं वो करवाना। अब कई बार होता है कि फैमिली वो चीज़ को नहीं मानती तो हमें दूसरी चीज़ को मानना पड़ता है कि नहीं हम ये कर लेते हैं, पर गुरुजी हैं, गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी ने अपनी रज़ा में रखना है, और मैंने बस गुरुजी से अरदास की थी गुरुजी जो आपको सही लगता है ना उसको आपने वैसे यूटिलाइज़ कराना है और वही कराना है, और मुझे पता है कि गुरुजी वही करा रहे हैं, उनको पता था कि इस चीज़ में किसकी ज़रूरत है और क्या करना चाहिए, और गुरुजी अपने रास्ते में वो चला रहे हैं, और बस गुरुजी इस तरह से अपना साथ बनाए रखे, अपना हाथ हम अपनी संगत के ऊपर बनाए रखे, हम सब पे रखे, हमारे अपने सारे परिवारों पे रखे, ये भी परिवार उनका है, हम सारी संगत के परिवार उनके हैं, और इस तरह से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। गुरुजी हम आपको नहीं समझ सकते लेकिन बस हम आपसे प्यार करते हैं सारे। संगत जी मेरा एक और शुक्राना है सत्संग है कि बिकॉज ऑफ मेरी मदर को आइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, आई थिंक उनको मोतिया भी स्टार्ट हुआ है, तो पता नहीं गुरुजी की कृपा से कहीं से हमें पता चला कि यहाँ मेडिसिन मिलती है, आई बिलोंग्स टू अमृतसर, तो वो वहाँ उसको डालने से ठीक हो जाता है। उसका मिक्स सा रिस्पॉन्स है मेडिसिन का, चलो फिर मदर कहते हैं कि ऑपरेट ना करवाना पड़े, तो वो मेडिसिन लेने गए मेरे फादर के साथ, तो पता नहीं उनको वो जगह नहीं मिली जहाँ से वो मेडिसिन जाने लगे थे, पर जैसे ही वो जगह पे पहुँचे काफ़ी रश था क्योंकि वो शहीदा साहब के पास है, अमृतसर में शहीदा साहब है, तो वो वहाँ पे उनको वो जगह नहीं मिली, लेकिन वैसे ही वो रास्ता पूछते पूछते जब किसी से जा रहे थे वो शहीदा साहब के पास तो पहुँच गए, और मुझे पता है ये गुरुजी ने ही किया है, और उनको वहाँ पे वो शॉप ही ना मिले, तो उन्होंने जब किसी से पूछा तो बाई चांस जिससे उन्होंने पूछा मेरे मदर ने ये मुझे बताया कि उन्होंने ऐसे कहा कि मुझे ये शॉप पता करनी है, वो कहते हैं कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ही वो मेडिसिन है, ये लो आप डालो, और उन्होंने ही वो मेडिसिन मेरे मदर को पकड़ा दी, और मुझे पता है कि गुरुजी ने ही मेरे मदर को अपने गुरुजी खुद आए और उन्होंने मदर को वो मेडिसिन पकड़ाई, क्योंकि उनको वो जगह नहीं मिल रही थी, पर वहीं जगह की मेडिसिन गुरुजी ने उनके थ्रू किसी संगत के थ्रू या किसी के थ्रू गुरुजी को आई थिंक गुरुजी खुद ही आके उनको वो पकड़ा के गए कि मेरे मदर को कि ये जाओ तनु को मन की ज़रूरत नहीं है, एल मेडिसिन, और मुझे पता है, और वो मेडिसिन को यूज़ करके मेरी मदर की आइज़ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, गुरुजी ज़रूर वो पूरा उनको गुरुजी ही ब्लेस करेंगे, और गुरुजी ने ही वो सब कुछ करवाया उनसे भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, और मैं फिर से सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी जब ये मिरेकल भी होगा, गुरुजी का ब्लेसिंग्स ये भी हो जाएंगी, और मुझे पता है ये हो ही जाना है,
और मुझे पता है आप लोगों को भी फील है कि गुरुजी जब खुद करवाते हैं सब कुछ और वो काम हो ही जाता है। तो इस तरह से संगत जी बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं जो आप शेयर ही नहीं कर पाते हो। तो अभी तो मेरे माइंड में ये 2 ही आ रही हैं, फिर और मेरे पास जब कुछ और आएंगे तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी, फिर से अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए संगत जी मैं आप अभी शुक्राना शुक्राना सत्संग को संपूर्ण करती हूँ। और गुरुजी इस तरह से अपने इस परिवार को ब्लेस करें, आप संगत को ब्लेस करें, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं इसको संपूर्ण करती हूँ और फिर नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर से आऊँगी। सो आप भी प्लीज़ मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें ताकि इस ब्रह्मांड में इस तरह की ये वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, ओम की वाइब्स, गुरुजी की वाइब्स गूंजती रहे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू वेरी मच, लव यू गुरुपा, ब्लेस यू, मी ब्लेस अस गुरुपा, ओम शुक्राना नमः गुरुपा। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी दा। प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे परम परमात्मा, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव जी जी, लव यू सो मच मेरे गुरु पापा, लव यू सो मच मेरे प्यारे पापा। अगर आप नहीं आते ना मेरी जिंदगी में, आपके ये बच्चे, आपकी दी मर जाती कब की। किन्नी किन्नी बार बताया आपने, और जिन जिन परेशानियों से जूझ रही हूँ सारी लाइफ आपने देखी है गुरु पापा, सब देखा है आपने। मैनू आप कितना प्यार करते हो, तो मैं भी अपने उन्ना ही प्यार कर दिया, आपको पता है। मैं अपने गुरु पापा का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। लव यू सो मच मेरे गुरु पापा, लव यू सो मच। मेरी जिंदगी विच जो भी दुख आ रहे हैं गुरु पापा, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ करने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु पापा, बहुत 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 शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, आश्वास श्वास का शुक्राना। ये जो मेरे मुंह से जो भी वर्ड निकल रहे हैं ना गुरुपा, वो भी आप ही निकलवा रहे हो। मैनू बस शुक्राना सत्संग करना है, मैनू नहीं पता कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। मेरे को लगता है गुरुपा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और मेरा रखते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी बहुत प्यार करते हैं मेरे को, मेरे गुरुपा बहुत प्यार करते हैं। पता है आपको संगत जी, मेरे को मेरे गुरुपा मिल गए हैं। कोई कहेगा ना गुरुपा को देख सकते हैं, हाँ हाँ दिख जाते हैं गुरुपा। अगर हम बहुत प्यार से देखेंगे सच्चे मन से तो वो गुरुपा दिखते हैं, और मेरे गुरुपा मैंने देखते हैं, मेरे को स्वरूप में देखते हैं। और गुरुपा मेरे को लगता है वैसे भी दिख जाएंगे, अगर हम बहुत सच्चे दिल से जुड़ेंगे ना गुरुपा सामने आ जाएंगे, सच्ची वो आ जाएंगे। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। संगत जी सच्ची बताऊं, मैं मेरी बॉडी विच की प्रॉब्लम है मैनू नहीं पता, ना मैं जानना चाहती है ना, लेकिन गुरुपा को सब पता है। गुरुपा को पता है मैं बहुत इस मामले में, गुरुपा को पता है कि बहुत डरपोक हूँ मैं, क्या क्या चल रहा है इसकी बॉडी में, क्या क्या नहीं चल रहा इसको नहीं पता, ना मैं इसे जाने दूंगा। इसको जल प्रसाद और टिक्का प्रसाद से सही करना है। मैनू पता है मेरे गुरुपा मैनू सही कर रहे हैं, और कर भी दिया है बहुत चीजें। मेरी मेंटल स्ट्रेस भी गुरुपा ने बहुत सही है, मेरे को गुरुपा ने बहुत शांत किया है, मुझे बहुत शांति प्रदान की है गुरुपा ने। पहले मैं जरा जरा सी बातों पे इतना गुस्सा कर जाती थी, लेकिन अब मैं बहुत शांत हो गई हूँ, सोचने लग गई हूँ बोलने से पहले। पहले नहीं सोचती थी, अब हर चीज को थोड़ा अलग एंगल से देखती हूँ, पहले वैसे नहीं देखती थी। अब मैं सोचती हूँ जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की राज्य से तो हो रहा है, उन्हें पता है, और वो मेरे हाथ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया तो कुछ गलत होना ही नहीं है। और संगत जी हमें ना अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। मैनू पता है, ऐसा लगता है कि संगत जी कहीं मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई गलत कर्म ना हो जाए, सच्ची में। गुरुपा मैनू माफ कर देना,
ये आपकी भोली बच्ची है, इसको नहीं पता कोई कर्म गलत हो रहा है या नहीं। तो मैंने माफ कर देना गुरु पापा। बच्चों की साइड से भी माफी मांगती हूँ, पति की साइड से भी। हमने बख्श देना गुरु पापा जी। पता नहीं मुझे क्यों रोना आ रहा है, मुझे नहीं पता। मैं अपने गुरु पापा से बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, जब मैं सोती हूँ ना, मेरे को मेरे गुरु पापा मेरे मन में रहते हैं। उठती हूँ तो मेरे मन में रहते, कोई काम करती तो मन में रहता है गुरपा 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 ही रहता है पूरे दिन। दिन रात मेरा गुरपा ही रहता है। संगत जी, लोगों ने ना बहुत दूर करने की कोशिश करी है गुरुपा से। जितना गुरुपा से दूर करने की कोशिश करी है ना, गुरुपा के मैं और नेड़े आई हूँ। गुरुपा ने और नेड़े किया है मेरे को अपने। कभी विश्वास टूटने नहीं दिया अपना। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुपा मेरी वजह से किसी का मन दुखा हो या मेरी वजह से किसी को पनिशमेंट दी हो ना, प्लीज उसे माफ कर दो गुरु पापा, प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरी वजह से किसी को पनिशमेंट मिल रही है। नहीं गुरुपा, आप माफ कर दो, सबको माफ करो, सब बंदा भला करो। गुरुपा, मेरे बच्चों का भी ध्यान रखो। अपने बड़े धोते की तबीयत ठीक नहीं है, उसको ठीक रखो गुरुपा। सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी ठीक रखो गुरु पापा, उन्हें भी ठीक कर दो। काफी एजेड है गुरुपा, इतनी एजेड है गुरुपा, इतनी प्रॉब्लम सहन करनी पड़ी है गुरुपा, उन्हें भी ठीक कर दो। गुरुपा कहते, बेटा जैसी तू है ना वैसे ही दिखाया करना सबको, सबको तू बहुत वैसी लगती है। मैं क्या करूं गुरुपा, अंदर से वो बहुत अच्छी हूँ, आपको पता है। लेकिन गुरुपा मैं अच्छी ही थी शुरू से। लेकिन आपको पता है किन कंडीशन से, किस तरह से लोगों ने मैनू इन्ना इन्ना दबाया, इन्ना इन्ना दबाया, जहाँ तक कि जो मेरे कोई नहीं था, कोई बच्चे, एक टाइम ऐसा था बच्चे अगेंस्ट हो रहे थे, मेरे पति भी। तो मैं बहुत परेशान थी, तो मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया। तो मैंने अपने आप को सच्ची संगत जी बताऊं, मैंने अपने सोचा मेरे परमात्मा ने, लगता मेरी आयु छोटी है और मेरे को छोड़ दिया। खुद ही खुद ख्याल आने लग गए थे, लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने जीवन ब्लेस किया। पता नहीं कितनी बार लाइफ ब्लेस की, और देख कितना शुक्राना करूं, मैनू नहीं पता। मेरे संग रहते हैं, मेनू शांति मिलती है कि हाँ मेरे गुरुपा मेरे साथ है। सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है। मेरे गुरुपा हर बात का आंसर देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना है। कभी छोड़ के भी नहीं जाएंगे, उसके लिए भी शुक्राना। जब भी छोड़ के चले गए ना, वही मर जाना है। मैंने बहुत प्यार है अपने गुरुपा से। मेरे पापा संगत जी, वो मेरे पापा ही है, सच में पापा है। मुझे अपने गुरुपा में मेरे को अपने पापा दिखाई देते हैं, जो कि गुरुपा के पास है अब। वो मेरे पापा ही हैं। मुझे मैं क्या समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। गुरुपा ने बहुत बहुत चीजें ठीक करी है। अभी अभी ये स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। गुरुपा कहते हैं बहुत जल्द खत्म होने वाला है बेटा, तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी गुरुपा। मेरे को राजयोग वाजयोग का तो खैर पता नहीं, मैंने बस ये पता है कि खुशहाल जीवन चाहिए, बच्चे ठीक चाहिए, पति भी ठीक चाहिए, इतना नहीं पता। इस फेस पे खुशी चाहिए गुरुपा। जिस तरह से आपका स्माइलिंग फेस रहता है ना, वैसे ही मेरे को मेरा स्माइलिंग फेस हमेशा ऐसे चाहिए, आपके जैसे, जैसे स्माइलिंग फेस रहता है। आपने बोला भी था स्टार्टिंग में, बेटा तू भी ऐसे मुस्कुराएगी जैसे मैं मुस्कुराता, ऐसे ही मुस्कुराती रहेगी। तो संगत जी, मैं बहुत हंसमुख हूँ, हर बात में मुस्कुराती, चाहे मेरे को दुख भी हो ना तो भी मेरे फेस पे हंसी रही है, गुरु जी को पता है। कभी नहीं रोती, कोई रोती हो ना, और मैं अपने गुरुपा के सामने रोती हूँ। सब सो गए, मैं अपने गुरुपा के सब रूप के सामने बैठी हूँ। अब काम वाम करके अपने गुरुपा के आगे नहीं बैठी। आज मेरे को अपने गुरुपा का स्वरूप साफ करना था, नए कपड़े पहनाने थे,
लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई अपनी गुरपा का, ना स्वरूप साफ कर पाई, ना नए कपड़े पहना पाई। तो मंडे के दिन तो मुझे गुरपा सुंदर सुंदर चाहिए ही होते हैं, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना गुरपा को नहीं कर पाती मैं। मैनू माफ करना गुरपापा, माफ करना, इनमें मेरी गलती नहीं है, आपको पता है। गुरबा आप कहते हो बच्चों पे कोई कष्ट है तो गुरबा उन्हें दे कष्ट काटो गुरबा, एकदम ठीक कर रखना बच्चों को, सोई भी ना चुभे गुरबा बच्चों को, किसी के बच्चों को भी परेशान मत होने देना गुरबा। सब अपनी माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, सबको ठीक रखो गुरबा, सर्वदा भला करो, पति को भी ठीक करो गुरबा। गुरबा कहते हैं पति को भी तेरे एकदम ठीक कर दूंगा गुरबा। पति और पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है, वो अपनी सारी चीजें शेयर करते हैं, जहाँ गुरुपा हर चीज में छुपा छुपा के रखा जाए, सारी चीजें बोला नहीं जाए, सब आप समझते हो गुरुपा। संगत जी में ये चीजें आपको गुरुपा को पता है, ये बताने लायक मतलब बता नहीं सकती, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं, क्या आपसे फीलिंग एक्सप्रेस करूं। 14-15 साल हो गए शादी को, लेकिन जो एक हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता होता है ना, वो वाला नहीं हुआ अभी तक। और जबकि हम दोनों बहुत अच्छे हैं, गुरबा कहते हैं लोगों की नजरें लगी रहती है, गुरबा कहते हैं लोगों की नजरें लगी हुई है, वो लोग नजरें भी घर वालों की लगती है। कहते हैं बेटा उनादी उल्टी गिनती शुरू हो गई है गुरबा, मेरे को दिखाई दे रहा है वो जो आप कर वो हो रहा है घर में, सब मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन गुरबा मैंने कभी भी नहीं बोला किसी को आप फिजिकली इस तरह से प्रॉब्लम हो, उनको समझा दो बस, डांट से समझाओ कैसे भी समझाओ, लेकिन किसी की गुरुपा हेल्थ पे ना बने प्लीज गुरुपा। सबको ठीक रखो, सबको ठीक रखो, सब अपनी लाइफ में मस्त रहें, सब सब प्यार करें आपसे, सब अपनी लाइफ में मस्त रहें। किसी को किसी से क्या मतलब, किसी के कम, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, वो अपने अपने कर्म के अकॉर्डिंग है। किसी से कोई किसी को जलन नहीं करनी चाहिए, बस अपने अपने जो जो है उसमें संतुष्टि रखो। गुरुपा ने संतुष्टि रखना सिखाया है, अपने पास जो है भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, और नादर थैंकफुल करो। गुरुपा बहुत अच्छा घर दिया है, परिवार दिया है, बहुत सब कुछ अच्छा दिया है, 2 रोटी रोटी भी मिल रही है ना, तो उसके लिए भी अपने गुरुपा को धन्यवाद करो। गुरुपा बहुत अच्छे हैं। संगत जी अभी एक बात बताती हूँ, एक अंकल है, बहुत बूढ़े अंकल है, बहुत बूढ़े, पता है उनको ना मैं खाना दे के जैसे आई, मैं बता दूं गुरुपा, उनको जैसे खाना दे के आई तो मिल नहीं रहते, तो उन्होंने बताया वो वहां रहते हैं, एक अंकल ने बताया वो वहां रहते हैं। तो मैं जैसे जैसे वहां पे गई, उनका टूटा फूटा सा घर था, मैं चढ़ गई ऊपर बिना कुछ सोचे समझे कि क्या होना है क्या नहीं होना है, ऐसे किसी अनजान जगह मेरे पति और सासू माँ को पता चल जाए ना, मेरी जान निकाल देंगे सच में संगत जी। तो मैं चली गई, मैंने देखा बहुत बूढ़े से अंकल टूटी फूटी से चारपाई पे लेटे हुए, कीचड़ का ढेर सामने पड़ा है, पन्नियां बहुत गंदगी में लेटे हुए, एकदम सुखड़े हुए, जैकेट पहने हुए, इतना बेकार लगा मेरे को। बहुत बेकार, उनको देख के बहुत बेकार लगा। फिर मैं उनको खाना दे के आई, अंकल कह रहे बेटा, मैंने क्या पहचान लिया था बेटा, तेरी आवाज से पहचान लिया मैंने। तो मैं उनको खाना दे के आ गई। फिर जब नीचे आई तो दूसरे अंकल कह रहे उनके बहू बेटे ने ऐसे हैं, उनके बहू बेटे तो फिर क्या कह रहे, उनके बहुत बुरे कर्म थे अंकल के, जो उनकी ये हालत हुई है। गुरुपा उन्हें भी माफ कर दो, सब लोग माफ कर दो गुरुपा, सबको भला कर दो गुरुपा, हो जाती है गुरुपा गलतियां जाने अनजाने में, बट उनको समझा दे करो। एक सबक तो लर्निंग लेसन तो होता है गुरुपा, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा ना गुरुपा, मेरा दिल बहुत वो हो गया अंदर से, अभी तक माइंड से वो चीज सीन हटता नहीं है जो मैंने देखा था। उनके बहू भी उनके बेटे भी है, फिर भी वो कीचड़ में ऊपर सो रहे हैं और खुद नीचे सो रहे हैं, ये तो गलत बात है ना गुरुपा, ना खाना देना ना पीना देना। मेरे को सहन नहीं हुआ था, अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी गुरुपा। मैनू आप नीवा बना के रखना, जैसे मैं बहुत अच्छी हूँ जैसे मैं हूँ गुरुपा, और अच्छा बना देना, इतना पता है।
कभी गलत काम नहीं कराना, कभी गलत सोच मत देना, गलत सोच आए तो उसे भगा देना अपनी फूंक मार के, हट इसकी जगह नहीं है मेरी कुड़ी के अंदर, ऐसे करके। बस इतना ही कहना चाहती हूँ गुरुपा, जिस तरह से। और गुरुपा हाँ, मेरी मम्मी के भी पैर की चोट ठीक कर दो प्लीज, उनके प्लास्टर चढ़ा हुआ, बहुत परेशान है मेरी माँ, उनकी भी चोट लग रही गुरुपा, उनके भी कष्ट कट रहे हैं गुरुपा, उन्हें माफ कर दो गुरुपा। मैं अपनी मम्मी की साइड से भी आपकी माफी मांगती हूँ, सासू माँ की साइड से भी माफी मांगती हूँ, पति की साइड से भी माफी मांगती हूँ, सबकी साइड से माफी मांगती हूँ गुरु पापा। मैं बच्चों की साइड से माफी मांगती हूँ, सबनों माफ कर दो गुरुपा, सबनों माफ कर दो गुरुपा, माफ कर दो, माफ कर दो मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा, माफ कर दो। और गुरुपा सब सरबद्दा भला करो, सभी जानवरों को रोटी दो, कपड़ा दो, मकान, सबका सबका भला करो, कोई भूखा ना सो, कोई प्यासा ना सोए। मेरे गुरुपा ने ये सारी धरती बनाई है तो गुरुपा के सभी बच्चे हैं, गुरुपा सभी पे अपने दया करुणा का भाव रखो, सभी का करुणा, सभी के मन में करुणा भाव होना चाहिए गुरुपा, एक दूसरे के लिए सबके अंदर करुणा होनी चाहिए, सबके अंदर दया भाव होनी चाहिए। अगर यही नहीं रही तो गुरुपा फिर इंसान होने का फायदा ही क्या, क्योंकि अगर दया भाव नहीं आएगी एक दूसरे के लिए तो इंसान होना तो बेकार है ना। अच्छा इंसान वही होता है जो एक दूसरे के काम आए। बस अपने इतना ही शुक्राना शुक्राना सत्संग कहना चाहती हूँ। गुरु बाबा जब से आए हैं, जब से मैं बहुत खुश हूँ, चाहे मेरे को बहुत दुख आ रहे हैं, चाहे कितने भी दुख आ रहे हैं, लेकिन मैं एक अलग सी खुशी है कि गुरु पापा मेरे साथ है और मेरे पापा मुझे मिल गए हैं। इससे बड़ी और बात क्या है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा देखो अपनी पागल सी लड़की को फिर से मैं आपका मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ, एक थप्पड़ यहाँ इसके मारते करो मेरे को, है ना। अभी बोलती हूँ, अभी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाना चाहती हूँ अपने गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी से 10 है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से 10 है। ओम नमः शिवाय, शिव जी से 10 आए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से 10 आए। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी दा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। यू आर द ग्रेटेस्ट फादर ऑफ द यूनिवर्स, लव यू सो मच। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।